Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss interaction in between the different types of molecules or ion or in between the ion and molecules. Now next interaction may be possible in between the ion and the dipole, and another one of the also discuss ion induced dipole. तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट वन ऑफ द आयन विथ अनदर ऑफ द डाइपोल मॉलिक्यूल्स और वन ऑफ द आयन आल्सो इंटरैक्ट विथ अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नाउ बहुत छोटे लाइन में एक्सप्लेन करेंगे. आयन आइए आयन डाइपोल interaction. Okay, ion dipole interaction, and another one of the also point out ion induced dipole interaction. Okay, now here ion dipole interaction. Now ion dipole interaction can also define one of the molecules is polar in nature, that is dipole, which have dipole. Dipole, that means positive and negative both charges appear in the molecules. Okay, so now in case of ion, how to define ion dipole interaction? Okay, this type of interaction arise in between one of the ion and another one of the polar molecules. Okay, one of the ion may be cation or anion or positively or negatively charged ion. Positively or negatively charged ion which interact with another molecules like polar molecules. Now interaction in between okay, interaction in between ion
and dipole, dipole that means polar molecules. Okay, polar molecules interaction in between ion and dipole or polar molecules increase with increase in with increase in, okay, with increase in positive charge on ion or या negative charge on ion. Okay, now on the basis of some examples how to understand ion dipole interaction. First of all, you write down the definition of the ion dipole interaction. Okay, thank you. Now ion, try to understand carefully. Ion may be positive ion or positive ion or negative ion. Okay, negative ion. And dipole interaction, that means polar molecules, polar molecule. Okay, now polar molecules, that is HOH, this is the polar molecules. Oppositely charged, positive and negative charge appear in the molecules called polar molecules. Now here H bears a partial positive charge, okay, and oxygen in water molecules bears partial negative charge. Now here delta positive and delta negative. Okay, and another one is the HCl, CH3Cl, so on. Here H2S, this is the water, this is the hydrogen sulfide. Now H2S, H bears partial positive charge, and now here sulfur bears partial negative charge. Now ion dipole interaction, ion may be positive or negative. Ion may be positive or negative, that means here this is the ion, this is the ion, okay, and now this is the polar molecules, and now here negative pole of the polar molecules, negative pole of the polar molecules which interact with ion of the positively charged. आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो पोलर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इंटरैक्ट करेगा। क्यों इंटरैक्ट करेगा?
क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच, इन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्शन एराइज, हमेशा अट्रैक्शन होता है। और इसी तरीके से ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ हियर दिस इज द नेगेटिव पोल, this is the negative pole, and here this is the positive pole, so on. Negative pole, here positive pole, here negative pole, here positive pole, negative pole, here positive pole. This is the ion, this is the ion bears positive charge, positively charged, okay, positively charged. And now here this is the what? Polar molecules. Polar molecules. Interaction in between ion and dipole, okay, interaction in between ion and dipole, that is one of the ion may be cation or anion. Now here another one of the examples can also be SiN. This is the negative charged, here this is the negative charged, this is the negatively charged ion, and which attract polar molecules, like here this is the positive pole and here this is the negative pole. And now next, this is also polar molecules, this is the positive end, here this is the negative end. And next one is, may also be right, here positive end, here negative end, and another one of the polar molecules, here positive end, here negative end, okay. Now here this is the ion, this is the ion. Now negatively charged, okay. And now here this is the polar molecules, this is the polar molecules bears positive as well as negative charged, and center of the polar molecules, in between the center of the polar molecules, now one of the ion placed bears a negative charged ion which interact the positive end of the polar molecules. You know, polar molecules may be possible two or more atoms which combine together. Now one of the end may be possible positive end, another one of the end may be possible negative end. Negative end always interact with the positive end of the polar molecules. This type of interaction is called ion dipole interaction, okay. Now here ion dipole interaction
interaction in between ion dipole. Ion dipole. Now here ion, this is the negatively charged. Now here ion, this is the positively charged. ध्यान से बात को समझ लीजिएगा. आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, आयन आपका नेगेटिवली चार्ज हो सकता है. कोई भी आयन हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. और पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो जब भी कभी वो पोलर मॉलिक्यूल्स को इंटरैक्ट करेगा तो नो डाउट कि पोलर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव एंड और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को इंटरैक्ट करता है. और यह इंटरेक्शन डिपेंड करता है चार्ज ऑन आयन. ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन, हायर विल बी इंटरेक्शन. पॉइंट आउट. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. Now you point to remember. Point to remember. याद रखिएगा इस बात को. पॉइंट टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे. पॉइंट टू रिमेंबर. ओके, point to remember. First point. Now here first point, interaction in between ion and dipole increased. Interaction in between ion and dipole increase. This is the abbreviated form of the increase notation. Okay, this is the increase. ये increase का notation है बेटा. Decrease की बात आएगी तो this short form decrease. Now here interaction in between ion and dipole increase with increase in positive charge on ion. Good. जब भी कभी किसी आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन की बात होगी तो ये बात तो क्लियर है कि इंटरेक्शन होगा. इंटरेक्शन तो किसी के भी बीच में होगा. ओके, तो इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा जब आयन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे. जैसे आपने देखा होगा NaCl, यू नो NaCl सॉल्ट जो आप यूज करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बात ध्यान से समझिएगा, NaCl जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये NaCl अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है. मीन्स आफ्टर द dissolve NaCl in the water, NaCl convert Na positive and Cl negative. NaCl actually one to another are interact due to electrostatic force of attraction. NaCl
के बीच एक इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। NaCl, KCl RbCl, CsCl ये आपके एल्कली मेटल्स के हैलाइड है। एल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एल्कली मेटल्स होते हैं और सेकंड ए में जब आप जाते हो तो वो एल्कली अर्थ मेटल्स हो जाते हैं। जो एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, अगर उनके हैलाइड की हम बात करें तो ये हैलाइड NaCl, KCl, RbCl एंड CsCl, सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, हियर सोडियम क्लोराइड। जैसे ही इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, H2O में डिसॉल्व करते हैं। देखिए इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं ना हियर, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर हमारा क्या है, डाइपोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये NaCl, KCl, RbCl, ओके, एंड नाउ हियर सीजियम क्लोराइड विच इज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जब हम डिजॉल्व करते हैं, अलग अलग डिजॉल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इनमें से आयन जो अपीयर होंगे इन द सॉल्यूशन, Na पॉजिटिव एंड नाउ हियर Cl नेगेटिव, एंड इन केस ऑफ KCl, K पॉजिटिव, हियर Cl नेगेटिव। नाउ RbCl, हियर Rb पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में NaCl डिजॉल्व इन वाटर, इतनी बातें उन्होंने मेंशन किया है। अब इतनी बातें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लिए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट है तो NaCl की बात वो करते हैं, आप KCl की बात कर लीजिए, वो KCl की बात करते हैं, आप RbCl की बात कर लीजिए, आप RbCl की बात वो करते हैं, आप सीजियम क्लोराइड की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए। अरे छोड़िए इनके, वो NaCl की बात करते हैं, आप बेरिलियम क्लोराइड की बात कर लीजिए, आप कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लीजिए, आप स्ट्रांसियम क्लोराइड का एल्कली अर्थ मेटल्स के हैलाइड की बात कर लीजिए, किसी के भी बात कर लीजिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर लीजिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस केस में जैसे ही हम वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Rb पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एंड नाउ हियर सीजियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और जब ये वाटर, हमने कहा इंटरेक्शन इन बिटवीन आयन एंड डाइपोल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन, ओके, ध्यान से बात को समझिएगा। और हम अगला आयन एक लेते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, बेरिलियम क्लोराइड, एक और लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड। और इस बेरिलियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं या इसमें वाटर डालने की कोशिश करते हैं तो ये भी बेरिलियम 2 पॉजिटिव प्लस हियर 2Cl नेगेटिव ऐसे ब्रेक हो जाता है, ओके। तो ये सभी के सभी ऐसे लिखा होता है NaAQ। AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि इस आयन के, जैसे ये Na पॉजिटिव का आयन है, इस आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए हुए, वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए हुए। यहां Cl एक्वस अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि Cl मॉलिक्यूल्स के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए हुए। नाउ हियर K पॉजिटिव एक्वस, यू नो एक्वस, association of water molecules around the ion, and now here Cl, this is also aqueous phase, RbCl, this is also aqueous phase, this is also aqueous phase, and now here aqueous phase, here aqueous phase, and now here aqueous phase, here aqueous phase। अब आपसे ये क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है, क्या एराइज किया जा सकता है, ध्यान से बात को समझिएगा।
एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द आयन किसमें मैक्सिमम होगा? नाउ हियर वन ऑफ द बेरिलियम 2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cg पॉजिटिव। केटायन की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात कर रहा हूं। हमने लिखा है इंटरेक्शन इन बिटवीन आयन एंड डाइपोल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर इनकी हम बातें करें बेरिलियम 2 पॉजिटिव की, नाउ हियर बेरिलियम एक्वस की बात करें एंड नाउ हियर सोडियम पॉजिटिव, ये भी एक्वस की बात कर लें। किस आयन के अराउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेगा? तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज बेरिलियम पर है। आपने सर अभी अभी बताया है इंटरेक्शन इन बिटवीन आयन एंड डाइपोल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो इसमें ज्यादा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इंटरेक्शन इन बिटवीन द बेरिलियम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा। ओके, इसका मतलब है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द आयन मैक्सिमम एसोसिएट करेगा। हाइड्रेशन, ध्यान से बात को समझिएगा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन एनर्जी की बात आती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, इसको आप लोगों ने पहले डिस्कस किया होगा। चलिए, तो इस बात का क्लियर है कि अगर आपसे ये पूछता है कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव, नेगेटिव। क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हैं कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, NaCl एंड KCl, RbCl सीजियम क्लोराइड, इनको अगर वाटर में हम डिसॉल्व करें तो कौन इजिली डिसॉल्व हो जाएगा? नो डाउट NaCl इजिली डिसॉल्व होगा इन कंपेयर टू KCl के। KCl इजिली डिसॉल्व होगा इन कंपेयर टू RbCl के, RbCl इजिली डिसॉल्व होगा इन कंपेयर टू सीजियम क्लोराइड के। ओके, तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट पर है। सेकंड पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर की फर्स्ट पॉइंट। नाउ ओके, थैंक यू। पॉइंट टू रिमेंबर की सेकेंड पॉइंट, smaller the size of cation, smaller the size of cation, smaller the size of cation, higher will be interaction, higher will be interaction in between, higher will be interaction in between ion and polar molecules, polar molecules। वाह, स्मॉलर द साइज ऑफ cation। अगर हम लिथियम की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, सोडियम पॉजिटिव की बात करें, पोटेशियम पॉजिटिव की बात करें और रुबिडियम पॉजिटिव की बात करें, आपसे मैं ये पूछूं कि H2O पोलर मॉलिक्यूल्स है, दिस इज द आयन, दिस इज द आयन, दिस इज द आयन, दिस इज द आयन, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। इनके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, किसके अराउंड? आयन के अराउंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के अराउंड। नाउ हियर H2O, ओके, नाउ हियर H2O, okay, here H2O,
कर रहा है, ये देखिए अट्रैक्शन है, क्या है, इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है। ऑब्जर्व करिए जरा, ये कह रहे हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन, जिस केटाइन की साइज बहुत छोटी होगी उस केटाइन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन उतने ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि H2O और लिथियम पॉजिटिव आयन के बीच इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा इन कंपेयर टू सोडियम वाटर, इन कंपेयर टू K पॉजिटिव H2O, इन कंपेयर टू Rb H2O। ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन, order of interaction in between water and alkali metal ion is Li positive is greater, Na positive is greater, K positive is greater, Rb positive is greater. Okay? थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर की थर्ड पॉइंट आउट करिएगा। ओके, थैंक यू। नाउ थर्ड पॉइंट, पॉइंट टू रिमेंबर की थर्ड पॉइंट, इफ साइज ऑफ द, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, इफ साइज ऑफ द, ध्यान से बात को समझिएगा, इफ साइज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स if size of the polar molecules increase, size of the polar molecules increase, interaction also increase। बिल्कुल क्लियर है। इफ साइज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, पोलर मॉलिक्यूल्स की साइज अगर बड़ी है, बिगर साइज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स, हायर विल बी इंटरेक्शन। जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपका कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन का सेंस है कि आयन आपका केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। और डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल का मतलब है आपका मॉलिक्यूल्स पोलर होना चाहिए। ओके, एक फोर्थ पॉइंट और पॉइंट आउट कर लीजिए। इंटरेक्शन डिक्रीज with increase in interaction decrease with increase in distance in between ion and polar molecules, ion and polar molecules। बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेक्शन डिक्रीज, किसके बीच का इंटरेक्शन, आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन कब डिक्रीज करेगा, जब इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। E is directly proportional to Q, this is the charge on the ion, and mu, this is the dipole
upon here this is the d square. One of the relation E is directly proportional to Q into mu upon d. Mu is the dipole moment and now Q is the charge on the ion and d is the distance in between ion and polar molecules. Now Q charge on ion, mu dipole moment, okay, and now here d is the distance in between ion and polar molecules, in between ion and polar molecule, okay. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये क्लियर है कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है क्या चीज। नाउ आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल सिमिलर इसी वे में बेटा इसी चीज को आपके ध्यान देना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि आयन डाइपोल की बात यहां है, यहां आयन इंड्यूस डाइपोल की बात है। आयन नो डाउट कि यही आयन होंगे जो इसमें आयन थे। कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी आयन हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी आयन हो सकता है। यहां ये कह रहे हैं कि इंड्यूस डाइपोल, इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इंड्यूस, इसमें इंड्यूस किया गया है पोलरिटी। और अगर पोलरिटी इंड्यूस की गई है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस किया गया है, इसका मतलब है कि आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहा होगा। ये पोलरिटी जो इंड्यूस की गई है ये तो आयन की वजह से इंड्यूस की गई है। इसके हम बेटा ये बिल्कुल सिर्फ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझा देंगे, बाकी सारी बातें यही रहेंगी। जहां जहां इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स है वहां वहां इंड्यूस डाइपोल का मतलब हुआ तो वहां वहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयन इंड्यूस डाइपोल की बात करेंगे, क्योंकि छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। समझा दूंगा आपको बातें, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। और अगले हेडिंग में हम लोग बात करेंगे London dispersion force, how to define London dispersion force, and another one is next heading होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।